Hello, dear students. Good morning, everyone. Today I am going to start our chapter number 4 of literature book. The name of the chapter is Henry, and the chapter is beautifully written by author Ruskin Bond. Yes, children, Ruskin Bond was a very famous poet as well as author, and he wrote many stories and poems for children. So let's start. This is the story of Henry, our pet chameleon. Chameleons are no ordinary reptiles. They are easily distinguished by certain outstanding marks from their nearest relative, the lizards. Yes, the story tells us about the chameleons. Yes, you must have some knowledge about chameleons. You must have studied about them. Chameleons are a kind of reptiles, and they are very much resembling to the lizards. Okay, and one more feature which they have is that they also can change their color of the body. So whenever they are in an particular in a environment, they just change their color to that environment. Okay, a chameleon's tongue is as long as its body. देख सकते हो आप लोग, उसकी जीभ जो है वो बॉडी जितनी ही long है. On its head it's a rigid crest which looks like a fireman's helmet. Its limbs are strong and slender, and its fingers and toes are more developed than those of other reptiles. Yes, इसके सर में जो एक मतलब rigid crest है, means the skin of the head, hard skin is called crest. वो भी एक फायरमैन की हेलमेट की तरह है. ये काफ़ी ज़्यादा, इसके लिम्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट थिन है, स्लेंडर है. ठीक है. इट्स फिंगर्स एंड टोज आर मोर डेवलप्ड देन अदर रेप्टाइल्स. दूसरे रेप्टाइलों के मुकाबले इसके फिंगर्स एंड टोज जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है. मैनी पीपल बिलीव दैट द कैमिलियन इज़ अ डेंजरस एंड पॉइजनस रेप्टाइल. बहुत लोगों का ये मानना है कि कैमिलियन जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस और पॉइजनस रेप्टाइल है, मगर ऐसा सच नहीं है. वो हमें इस स्टोरी में पता चलेगा. When grandfather was visiting a friend, he came upon a noisy scene at the garden gate. Men were shouting, hurling stones, and brandishing sticks. The cause of all this was a chameleon who had been discovered sunning himself on a shrub. The gardener declared that it was a thing capable of poisoning people at distance of 20 feet, and an entire household had राइजन इन आर्म्स. सो स्टोरी स्टार्ट होती है कैसे, जैसे ग्रैंडफादर एक गार्डन गेट में खड़े होकर ये सारा इंसिडेंट देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बहुत शाउटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को स्टोन्स मार रहे हैं और स्टिक्स बजा रहे हैं आपस में. एंड द रीज़न ऑफ ऑल ऑफ दिस इज़ व्हाट, एक कैमिलियन वहाँ पे देखा गया है एक श्रब के ऊपर बैठा हुआ. ठीक है. तो इसीलिए उससे डर के मारे उसे भगाने के लिए सब लोग ऐसा कर रहे हैं. और गार्डनर जो था उस गार्डन का, उसने ऐसा कहा है कि एक कैमिलियन इतना ज़्यादा पॉइजनस है कि वो आपको 20 फीट के डिस्टेंस से भी हार्म कर सकता है. तो इसीलिए और ज़्यादा जो पूरी की पूरी जो क्राउड थी, राइजन इन आर्म्स, मतलब सब लोगों ने हल्ला बोल दिया था. ठीक है, कि इसे तो भगाना ही पड़ेगा, ही हैज़ टू गो फ्रॉम देयर. Grandfather was in time to save the chameleon from certain death, and brought the little reptile home. The chameleon was Henry, and that was how he came to live with us. मगर grandfather ये सारा incident देख रहे होते हैं अपने गेट पे, गार्डन गेट पे खड़े होके, but he wanted to save the life of that chameleon. वो ऐसे उसको उन लोगों के हाथों मरने नहीं देना चाहते, वो उसको बचाना, उसकी जान को बचाना चाहते हैं. अगर वो वहाँ रहेगा तो उन लोग उसको मार देंगे. सो वो क्या करते हैं, उसको उठा के अपने घर ले आते हैं और उसका नाम रखा जाता है हेनरी. एंड दिस इज़ हाउ ही केम इनटू द ऑथर्स हाउस. Henry was a harmless creature provided I was patient. Henry was willing to take food from my hands. This he did very swiftly. His tongue was the sort which come back to him with the food, and an insect attached to it. Before I could realize that what happened, the grasshopper held between my fingers
would be lodged between Henry's jaws. ठीक है, तो अब क्या होता है, जब वो हेनरी को घर लेकर आते हैं, देन ही रियलाइज दैट इट वाज अ कम्प्लीटली हार्मलेस क्रिएचर. जैसा लोग उसके बारे में बिलीव करते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सच. ठीक है, वो उसके हाथों से खाना ले लेता है एंड बहुत ही स्विफ्टली आराम से खाना ले लेता है वो. ठीक है, और उसका टंग जो है वो भी थोड़ा स्पेशल काइंड का टंग है. वो थोड़ा सा स्टिकी होता है. वो क्या करता है, उसकी लॉन्ग टंग होती है, वो उसको बाहर की तरफ फेंकता है और उसमें खाना स्टिक होकर फिर उसके वापस मुंह में आ जाता है. ठीक है, तो इसी तरीके से उसका खाने का तरीका होता है. तो इसीलिए ऑथर जो है इससे पहले कि कुछ सोच पाते, ऑथर ये बताते हैं और बताने से विद इन सम सेकेंड्स वो क्या करता है, उसके सामने ग्रास हॉपर होता है और ग्रास हॉपर एक पलक झपकते ही जस्ट उसके हेनरी के जॉज के बीच में होता है. जॉज के बीच में मतलब जो हमारी अपर एंड लोअर जॉ है, हमारे जो दांतों के जबड़े हैं मुंह के अंदर दो, उनके बीच में होता है. तो उनके बीच में जब होता है तो फिर तो हम खाना खाते हैं ना, फिर चबाते काट के उसको बाइट करके. तो दैट मीन्स वो ग्रास हॉपर तब तक मर चुका होता है क्योंकि वो उसे अपने जॉज के बीच में दबा देता है, उसे खा लेता है. Henry did not cause trouble in our house, but he did create something like a riot in the nursery school down the road. It happened like this. Henry ने आज तक कभी उनके घर में कोई परेशानी, कोई ट्रबल क्रिएट नहीं किया है, बट उसने एक बार एक नर्सरी स्कूल जो उन्हीं के घर के बहुत पास है, डाउन द रोड, उसने वहाँ पर एक शरारत की है. एंड व्हाट वाज दैट, लेट्स सी. When the papayas in our garden were ripe, grandmother usually sent a basket to them to her friend. Okay, Mrs. Ghosh, who was the principal of the nursery school, on this occasion Henry managed to snuggle himself into the basket of papayas when no one was looking. The gardener dutifully carried the papayas across to the school and took them to Mrs. Ghosh's office. ठीक है, अब क्या होता है, वो कैसी शरारत करता है, उसकी जो ग्रैंड मदर होती है, उसकी ऑथर की, उस ग्रैंड मदर अपनी फ्रेंड को, उनका एक पपाया का गार्डन होता है. ठीक है, वही जिस गार्डन गेट पे वो खड़े होकर देख रहे थे ग्रैंडफादर. ठीक है, तो जब उस पर पपायाज अच्छे से राइप हो जाते हैं, ग्रैंड मदर अपने फ्रेंड को देती है. ग्रैंड मदर की फ्रेंड कौन होती है, वो मिसेस घोष होती है. ठीक है, उस नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल. तो उस नर्सरी स्कूल की प्रिंसिपल ग्रैंड मदर की फ्रेंड होती है. तो जब पपायाज राइप हो जाते हैं, ग्रैंड मदर हर साल उन्हें भी पपायाज देती है. और अब इसी तरीके से क्या करता है, ग्रैंड मदर ऑर्डर देती है किसको, गार्डनर को. वो ड्यूटीफुली लेकर जाके उस बास्केट को क्या करता है, फुल ऑफ पपायाज को लेकर जाके मिसेस घोष के ऑफिस में रख देता है. और अब हेनरी इस मौके का फ़ायदा उठाता है. वो क्या करता है, स्नगल इन हो जाता है, मतलब उस बास्केट के अंदर छुप जाता है किसी तरीके से, और अपना बॉडी का कलर भी चेंज कर लेता है. पपायास का कलर, रॉ पपायास का कलर ग्रीन है, तो वो अपनी बॉडी का कलर भी ग्रीन कर लेता है और किसी को समझ में नहीं आता कि हेनरी उसके अंदर बास्केट के अंदर छुप के बैठा है. When Mrs. Ghosh came in after making her rounds, she began admiring and examining the papayas. Out popped Henry. ठीक है, जब मिसेस घोष अपने स्कूल में राउंड्स कंप्लीट करके आती हैं, बैठती हैं, तो वो एक एक करके पपायास को उठा कर चेक करती हैं, एग्जामाइन करती हैं कि क्या वो पूरी तरीके से ठीक हैं, रॉटन तो नहीं है. तो उसके बाद वहाँ से क्या निकलता है, पॉप ठोकर हेनरी निकलता है. ठीक है, उछल के हेनरी बाहर आता है. एंड देन व्हाट वाज हैपेंड नेक्स्ट, फिर क्या होना था, मिसेस घोष स्क्रीम्ड, वो डर के मारे डर जाती हैं, डर के मारे चिल्लाने लगती है. हेनरी वुड प्रोबेबली हैव लाइक्ड टू ब्लश अ डीप रेड, बट ही टर्न्ड अ ब्राइट ग्रीन इंस्टेड, एज दैट वाज द कलर ऑफ द पपायास. ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि हेनरी क्योंकि अपने आप को ब्राइट ग्रीन कलर का, पपायास के कलर का कर लेता है, तो इसीलिए समझ में नहीं आता है और मिसेस घोष उसको हाथों से पकड़ के उठा लेती है और डर जाती है, फिर डर के मारे उसको फेंक देती है. एक Mrs. Ghosh's assistant, Miss Daniels, rushed in, took one look at the classroom, and joined in the screaming. Henry took fright and fled from the office, running down the corridor and into one of the classroom. अब उसकी चीख को सुनकर उनकी जो असिस्टेंट है मिसेस घोष की, प्रिंसिपल की, वो मिसेस डैनियल्स, वो भी कमरे में आती है और देखकर सेम वो भी स्क्रीमिंग में ही ज्वाइन कर लेती हैं. ठीक है, वो मतलब वो भी डर जाती हैं और वो भी डर के मारे चिल्लाने
में जुट जाती हैं, चिल्लाने लग जाती हैं। ठीक है, अब हेनरी क्या करता है, ऑफिस से उछल के निकल के क्या करता है, कॉरिडोर से जाता है, कॉरिडोर से जाके एक वन ऑफ द क्लासरूम में चला जाता है। ठीक है, अब क्लासरूम में कौन होता है, देखिए क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, अब वहाँ जाके बच्चों को डरा देता है। There he climbed on to a desk while the children ran in all directions, some to get away from Henry, some to catch him, but Henry made his exit through a window and disappeared into the garden। ठीक है, अब वहाँ जाके क्या होना था, वहाँ तो छोटे बच्चे हैं। ठीक है, वहाँ पे वो जाके एक डेस्क पे चढ़ जाता है और सारे बच्चे किसी भी डायरेक्शन में दिशाहीन होकर इधर उधर भागते हैं। कुछ हेनरी से दूर भागते हैं और कुछ बच्चे जो थोड़े ज़्यादा ब्रेव होते हैं, शैतान बदमाश होते हैं, हेनरी को कैच करना चाहते हैं अपनी मुट्ठी में, अपने हाथ में। ठीक है, तो they were very frightened, the children were। ठीक है, और उसके बाद हेनरी अपना एग्जिट ढूंढ लेता है स्कूल से, वो एक विंडो से बाहर चला जाता है। ठीक है, आई एम श्योर जैसे कि वो घुसा था वैसे ही वो बाहर चला जाता है और गार्डन में जाके डिसअपियर हो जाता है। Grandmother heard all about the incident from Mrs. Ghosh, but did not tell her that the class chameleon was ours. I did not think Henry would find his way back to us because the school was 3 houses away. But 3 days later, I found him sunning himself on the garden wall, and he readily accepted some food from my hand. ठीक है, ग्रैंडमदर को ये सारी बातें कौन बताता है, मिसेस घोष, क्योंकि वो उनकी फ्रेंड होती है। ठीक है, बट कभी ग्रैंडमदर ये सारी बातें सुन के समझती हैं, बट वो डर के मारे ये नहीं कह पाती हैं कि वो जो कैमिलियन था जिसने ये सब हरकतें की हैं वो हमारा ही था, वो हमारे घर पे रहता है। ठीक है, बिकॉज शी वॉज वेरी अशेम्ड ऑफ ऑल विच हेनरी डिड। ठीक है, तो वो सोचती हैं फिर जाते जाते कि मुझे नहीं लगता कि हेनरी वापस आएगा हमारे घर, क्योंकि घर से स्कूल जो था वो बहुत दूर था, 3 हाउसेस अवे, 3 घर छोड़ के था, तो इसीलिए इतना लंबा रास्ता वो पहचान के आ पाएगा वो मुझे नहीं लगता। बट आफ्टर 3 days शी फाउंड हेनरी अगेन इन दैट गार्डन सनिंग हिमसेल्फ। ठीक है, ऑन द श्रब जहाँ से वो पहले मिला था, और वहाँ पे वो क्या करती हैं, उसे जाके कुछ फूड देती हैं, तो वो उस फूड को बड़े अच्छे से एक्सेप्ट करता है। So students, here the story has ended. I hope that you have liked the video and learnt about chameleons, and I will be back soon with the next chapter. Till then, you all stay safe and take care of yourself and revise the chapter and learn the worksheet well. Thank you so much.